ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شكرا لله والحمد لله. شكرا لله والحمد لله. یا علی مدد سر.
या अली मदद फेरियल, या अली सुभान मदद, अल्लाह, नियामत साहिबा, या सुभान अली अल्लाह, मदद। या अली मदद। तमाम साथियों को या अली मदद। फेरियल ने जो है अच्छा, बहुत ही अच्छा जिक्र किया, बहुत ही खूबसूरत जिक्र। अगर वो स्लाइड दोबारा देख सकें हम। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए हमारे रब, हमारे नूर को तू मुकम्मल कर दे। अतमिम लना वग़फिर लना, हमारे गुनाहों को बख्श दे। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। ये कितना खूबसूरत स्टार्ट है क्लास का कि we have all gathered here seeking the light through knowledge, and we are praying. Truly we are praying. This is a beautiful prayer from chapter 66 verse 8, that Ya Mawla, please perfect for us our light, our nur. Forgive our sins. Indeed, you have power over all the things. Ameen. Shukran lillah walhamdulillah, subhanallah, subhanallah. तो आज हम फरमान के बारे में बात करेंगे। चूंकि अजीज साहब जो है एक कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, तो हम उसको वहां पर ही छोड़ेंगे, और जब अजीज साहब शुरू करेंगे तब वो वहां से कंटिन्यू करेंगे। आज नाचीज जो है कुछ टर्म्स को लेके हम इस पे बात करेंगे। When we study Farameens, we go through some terms which Imam uses very frequently, and then he defines it elsewhere. So what we are going to do is to connect these terms and its understanding, ताकि हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। मिसाल के तौर पे हम शुरू करते हैं मौला के मेहरबान नाम से। तौफीक, ताईद, हिम्मत यारी। तौफीक, ताईद, हिम्मत यारी। सबसे पहली टर्म जिस पर हम आज बात करेंगे वो है इंसान, mankind, human. Very frequently Mawla uses this term saying कि तुम इंसान हो, तुम्हें इंसान रूप में पैदा किया गया है। What does इंसान mean? When we look at ourselves, we all are इंसान. But why does Mawla Bapa would say तुम्हें इंसान के रूप में पैदा किया गया है? इसका क्या मतलब है कि इंसान के रूप में पैदा किया गया है? क्या हम इंसान नहीं हैं? इंसान तो है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि इंसान होने के बावजूद भी कोई जानवर जैसा रह सकता है। इल्म के रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हमें ये समझ बहुत अच्छी तरह से आ जानी चाहिए कि किस सांस, किस वक्त हम इंसान की तरह हैं या जानवर की तरह हैं। और ये बात हमने बहुत दफा पहले की है। ये दर्स मुकर्रर है। दर्स मुकर्रर के माना होते हैं हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार अपनी नफ्स को टटोलना होता है, हमारी पल्स को चेक करना होता है, ताकि हमें ये याद रहे, हमें ये समझ रहे कि हम रास्ते से तो उतर नहीं गए हैं। दिल में हम अपने आप को बहुत अच्छा समझे, भाई हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका अमल, इसकी समझ हर वक्त हमारे साथ है? और या तो हम भूल जाते हैं। So in other words, what we are saying कि all these terms which we review, we understand, we think we understand all the time, and when we are attending classes, we are doing this zikr, are we consistent? Are we consistently behaving like a human? जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या हम हर वक्त इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं या नहीं। तो इंसान जब दुनिया में आता है, बच्चा जब पैदा होता है, तो वो सबसे पहले इंस्टिंक्ट्स को समझता है। जिस तरह से हमने रूह के सफर में इस बात को अच्छी तरह समझा कि पहले मिनरल सोल होती है, फिर वेजिटेटिव सोल होती है, फिर एनिमल सोल आती है, और बाद में जाके जब बच्चा तकरीबन 10 साल का होता है तब जाके रैशनल सोल की समझ आती है, राइट और रॉन्ग में फर्क करना समझ में आता है। जब बच्चा छोटा होता है तो लिटरली वो एनिमल सोल के हिसाब से ही बिहेव करता है। भूख लगी है, खाना चाहिए, सोना है तो नींद आ गई तो जहां भी है जिधर भी है सो गए।
तो कहने का मकसद ये है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है और अब भी उसकी आदतें ऐसी हैं कि कोई चीज ऐसी सामने हुई जो नापसंद है और उस शख्स को गुस्सा आ जाता है, तो ये जो गुस्सा आना है वो जानवर की मिसाल है। तो सवाल ये होगा हमें अपने आप से कि क्या जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रहता है कि हम इंसान हैं? जब भी जिसको भी गुस्सा आता है वो जानवर की मिसाल पर है, उसी वक्त फौरन ही हम उतर के अपने दर्जे से जानवर में आ जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें हैं कि हमें अपने आप पर कंट्रोल है या नहीं। जब हम दुनिया में लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते जुलते हैं, तो हम बहुत ही अच्छाई से पेश आते हैं, हमारा इखलाक जो है बहुत अच्छा होता है। इखलाक जो है वो बहुत बड़ी निशानी है एक अच्छे इंसान की। अगर इंसान के अंदर अच्छा इखलाक नहीं है तो मिसाल पता है क्या होगी? वो जानवर की मिसाल होगी। एक अच्छे इखलाक वाला शख्स ही हमेशा अच्छी तरह से बात करेगा, नरम दिली से बात करेगा, प्यार से समझाएगा, गुस्सा नहीं होगा। इखलाक जो है वो बिगिनिंग ऑफ द नूर है। आपको ये जान के हैरत होगी कि अगर हम नूर की बहुत इन डेप्थ स्टडी करें कि नूर क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर नूर आ गया है, तो सबसे पहला जो दर्जा है जिससे नूर आता है वो ये कि हमारे इखलाक अच्छे होंगे, हमारा एथिक्स जो है वो बहुत अच्छा होगा, हमारा मॉरल बिहेवियर्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे, हमारी लेन देन में, मिलने जुलने में हमारे इखलाक बहुत अच्छे होंगे। जब जब इंसान का इखलाक बिगड़ जाता है, मिसाल के तौर पे गुस्सा आ गया, हसद की फीलिंग्स आ गई, किसी को जज कर लिया, ये तमाम जो है वो शैतान की बाजियां हैं। क्योंकि शैतान जो है हर इंसान को टटोलता है और टटोल के ये देखता है कि इस शख्स की क्या कमजोरी है। शैतान जो है बहुत होशियार है, वो हर शख्स का मुआयना करता है, एग्जामिन करता है कि भाई इसकी कमजोरी क्या है, उसको उसी कमजोरी से अटैक करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इमाम के फरमान के मुताबिक हम खुद अपने आप का मुआयना बार बार करें कि भाई इस वक्त इस लम्हे क्या मैं इंसान की तरह बिहेव कर रहा हूं या मैं जानवर की तरह चल रहा हूं। तो इंसान की जब हम बात करते हैं, इंसान की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ये एक छोटा सा टर्म नहीं है, इसके अंदर बहुत डीप मायना है। और आम तौर पे जब हम फरमान को पढ़ते चले जाते हैं तो हम हकीकत को नहीं समझते हैं, तो जो फरमान की हकीकी शुक्रगुजारी होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने 2 पेज 3 पेज पढ़ लिए, याद भी कर लिए, लिख भी लिए, सुना भी दिए याद से, लेकिन क्या इसके अंदर जो माना है, जो हकीकत है, उसको क्या हमने समझा? चलो ठीक है, समझ भी लिया, फिर अमल किया या नहीं किया? अमल बहुत जरूरी है। तो हमें सबसे पहले जब हम अपने आप को देखें, आईने में देखें अपने आप को, अपनी पल्स को चेक करें, क्या हमें सामने कोई जानवर नजर आता है? अगर हम गुस्से की मिसाल को लेते हैं तो गुस्सा जो है पीर नासिर खुसरो ने अपनी किताब वजह दिन में कुत्ते की मिसाल पे दिया है कि कुत्ता जो है वो भौंकता है, कोई रीजन, कोई बगैर रीजन के भौंकता है। तो ये एक मिसाल है उस ऐसे शख्स की कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्राइव करते हैं रोड पे और कोई आपको ड्राइविंग में कट करता है, तो आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत गुस्से हो जाएंगे, लाल पीले हो जाएंगे, आंखें दिखाएंगे, जबान से बुरे अल्फाज भी शायद अदा करेंगे। तो फौरन से एक किसी के एक्शन से वो शख्स जो है इंसान से उतर के फौरन जानवर के दर्जे पे आ गया। चूंकि रूहानियत का रास्ता जो है वो दर्जात में है, स्टेप्स में है, तो हमें अपने आप को ये देखना है कि क्या हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं जिससे हमें जानवर नजर आए अपने अंदर। मिसाल के तौर पे पीकॉक की मिसाल लेते हैं, मोर। मोर जो है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, फुल ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स फेदर बर्ड है, राइट? लेकिन मोर की मिसाल ऐसे दी जाती है कि मोर को अपने आप पे बहुत गुरूर होता है। मोर ये कहता है कि मुझ जैसा खूबसूरत या मुझ जैसा अच्छा तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं।
तो जब जब हमारे अंदर ऐसे ख्याल आए कि मैंने ये तो बहुत अच्छा किया, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं, समझ लेना होगा कि उसी वक्त हम इंसान के दर्जे से उतर के हमने जानवर के दर्जे पे आ गए। तो कितना आसान है हमारे लिए इस फरमान की नाफरमानी करना। हम यहाँ जो जमा हुए हैं वो फरमान बरदारी की समझ के लिए जमा हुए हैं कि हम फरमान को समझें और फरमान बरदारी करें। सिर्फ इंसान की लफ्ज को लेते हुए जब हम इस पे खुलासा करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो हमें समझ आता है कि कितना आसान है। How easy it is to decline from our stage or of our exalted stage as a human and become an animal. बहुत आसान है। इसलिए आमाल की पाकीज़गी, इखलाक का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर इमाम फरमाते हैं कि जब तुम इंसान हो तो तुम जानवर भी बन सकते हो, जिसके बारे में हमने बात की। फिर मौला फरमाते हैं कि तुम फरिश्ता भी बन सकते हो। तो हमें समझना होगा भाई फरिश्ता क्या चीज है, फरिश्ता कौन है, इसके काम क्या है। तो फरिश्ते के बारे में कहा जाता है कि भाई उसके पास तो फ्री विल होती ही नहीं है, उसका तो खाना और पीना सिर्फ जिक्र और इबादत है। तो कोई ये कहेगा ठीक है भाई इसके पास तो फ्री विल ही नहीं, वो तो जिक्र और इबादत करता है, हम क्या करें, हमारे पास तो फ्री विल है। जब इमाम हमें ये फरमान फरमाते हैं कि इंसान के पास दो रास्ते हैं, एक हैवान का और एक फरिश्ते का, इसका मतलब इमाम हमें ये समझा रहे हैं कि तुम अपने इंसानी रूप को पहचानो, अपने इस पावर को पहचानो कि जो हमारे पास है, और वो पावर ये है हमारी फ्री विल का पावर। एक आदमी अपनी फ्री विल को छोड़ के जानवर की तरह बिहेव करने लगता है, अपने आप को नीचे गिरा देता है, और दूसरा जो शख्स है वो अपनी फ्री विल को सबमिट करता है। इस्लाम का जो मतलब है वो सबमिशन है। जो मोमिन शख्स अपनी फ्री विल को सबमिट करके जिक्र, इल्म, इबादत में शामिल रहता है, वो उस वक्त, उस लम्हे वो फरिश्ता बन जाता है। क्योंकि हर चीज दर्जात में है। अगर हम ये देखें कि हम 24 घंटे हर वक्त अच्छे हो जाए, बिल्कुल कभी भी रास्ते से ना उतरे, तो वो आएगा, वो स्टेज आएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। हमें जो समझ है, जो संभाल करनी है, वो सांस 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 उसास समरण कर ले। हर सांस में, क्या इस सांस में मैंने जो है इंसान की तरह अपने आप को रखा कि फरिश्ते की कैटेगरी में दाखिल किया, या गिर के जानवर में आ गया। तो अपने आप को जो सुधारना है, जो फरमान बरदारी में लाना है, वो बहुत ही स्मॉल टास्क की तरह करना है। बहुत बड़े बड़े जब बातें करते हैं, जब हम बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, तो उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको बहुत छोटा छोटा गोल बना के आस्ते आस्ते आराम से अच्छे से, एक सांस के अंदर क्या मैंने फरिश्ते की तरह बिहेव किया। तो फरिश्ते किस तरह से बिहेव करता है? फरिश्ता जो है हमेशा अपने फ्री विल को इमाम के सुपुर्द करता है। शुरुआत कैसे होगी? जिक्र और इबादत से। ठीक है भाई, कोई कहेगा हम तो जमात खाने सुबह शाम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद, बिल्कुल जाएं। जमात खाने के अंदर जाके क्या जमात खाने के अंदर सिर्फ आपका जिस्म गया था, या आपका दिल और रूह भी आपके साथ थे? ये सवाल होगा। फिर जो हमारा वक्त घर में है, उसमें जब हमने जिक्र किया तो हमारा दिल ध्यान उस जिक्र के साथ था, या सिर्फ जबान जिक्र कर रही थी? तो ये तमाम जो है वो चेक पॉइंट है हमारे लिए कि हम देखें कि हमने हकीकी तौर पर किस सांस को हकीकत में फरिश्ते की तरह रखा। जब कोई इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आती है, कोई तकलीफ आती है, मिसाल के तौर पर यही मिसाल लेते हैं जो नेगेटिव मिसाल थी, कि आप गाड़ी चला रहे हैं आराम से, फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, और कोई आपके साथ बहुत ही गलत तरीके से सामने गाड़ी लाता है और आपको मुश्किल में डालता है, यहाँ तक कि आपको ब्रेक लगाना पड़ता है कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। अब चॉइस दो है कि आप गुस्से हो जाएं, चिल्लाने लगे, बुरे शब्द बोलने लगे, या फिर आप अपने आप को सब्र में रखें, एक्सेप्टेंस में रखें। इट्स ओके, इट हैपेंड, शुक्र मौला दैट आई वाज एबल टू ब्रेक, और मुश्किल नहीं हुई। ये चॉइस है, राइट? तो जिसने सब्र किया, कोई रिएक्शन नहीं किया, उसके सब्र की वजह से फौरन से उसका वो अमल जो है फरिश्ते के दर्जे पे पहुंच गया। तो कितना आसान है अपने आप को आगे बढ़ाना।
फरिश्ते के दर्जे पे ले जाना। जब हम इल्म को बहुत ही भारी और मुश्किल और सर पे सवार करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गिल्टी फीलिंग्स आती है। जब गिल्ट में जाते हैं तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। किस तरह से? शैतान पकड़ लेता है, शैतान देख लेता है कि ये शख्स जो है गिल्ट में रह के जिक्र को भूल जाता है, तो वो बहाने बहाने से आपको गिल्ट में डालेगा ताकि आप उस गम के अंदर जिक्र को भूल जाए। मोमिन की जो आदत होती है वो आगे बढ़ने की होती है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे आपने कोई गलत काम किया, आपने बहुत मौला से तौबा किया, फॉरगिवनेस मांगा और फौरन से आपने अपने आप को संभाल लिया और बोला इस सांस से अब हम फरिश्ते की तरह चलेंगे। सांस सांस लेके अपने आप को अच्छा बनाना है। जब जब हम बुरे काम करते हैं और हम कहेंगे भाई हम तो गिल्टी फील नहीं करेंगे क्योंकि अब से हम अच्छा करेंगे, ये एक अच्छा अप्रोच है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि जब हम कोई गलती करते हैं, हमारे जो फरिश्ते हैं हमारा हिसाब किताब तो लिख रहे हैं। उन्होंने तो लिख लिया कि आपने जो है ये गलत काम किया। अब हमें अपने नामाए आमाल में, उस रिकॉर्ड कीपिंग बुक के अंदर, हमें अपनी जो माफी है वो इतनी ऊंची, इतनी आला होनी चाहिए कि वो इरेजर का काम करे और उस गुनाह को मिटा दे। तो समझना होगा कि इरेजर का काम कैसे करना चाहिए। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं और हमें फौरन से पशेमानी होती है, शर्मिंदगी होती है, तो हमें ये अपना एक मकसद बनाना चाहिए जब भी हम गुनाह करें कि हम इसकी बहुत सख्ती से माफी मांगेंगे, बहुत सख्ती से माफी मांगेंगे। और माफी के बहुत सारे तरीके हैं। फरिश्ता जो है वो हमेशा खुदा से माफी मांगता है। अब जो हमने शुरू में जो जिक्र सुना, अतमिम लना नूरना वक्फिर लना, कि नूर तो दे मौला, मेरा नूर तो मुकम्मल कर, पर मेरे गुनाहों को भी माफ कर। क्यों? कि जो इंसान मोमिन बनता है, यानी कि फरिश्ते के रास्ते पे चलता है, वो अपनी रिकॉर्ड कीपिंग जो बुक है उसको बराबर अपने निगाह में रखता है कि उसने क्या 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 गुनाह किए हैं, और हमेशा अपने गुनाहों की वो माफी तलब करते रहता है। हमेशा हमेशा तौबों में रहता है। क्यों? कि जाने अनजाने कितने गुनाह हम कर लेते हैं। जब हम अपने गुनाहों को याद रखते हैं तो हमारे पास दो चॉइस है। शैतान ये चाहेगा कि आप हमेशा गिल्ट में रहें, हमेशा गिल्ट में रहे, क्योंकि जिक्र भूल जाता है, यू फील डाउन एंड यू डोंट डू एनीथिंग। इसके बजाय एक मोमिन क्या करता है? हमेशा माफी मांगता है, हमेशा माफी मांगते रहता है, अपने आप को एक ऐसी हालत में रखता है, दिल की हालत, एक दरवेश की हालत, एक गरीबी की हालत, एक आजिजी की हालत, एक माफी की हालत। जब इस तरह की हालत में वो अपने दिल को रखता है तो एक उसकी आदत हो जाती है माफी मांगते रहने की, अपने आप को हम्बल रखने की। ऐसे तमाम एक्शन से क्या होता है कि आपकी जो याद है, रिमेम्बरेंस है, यादगिरी, जो इमाम फरमाते हैं फरमान में, वो बहुत अच्छी होती जाती है। क्यों? कि आप हमेशा अपने आप को नीचा रखते हैं, हमेशा कमजोर रखते हैं, गुनाहों की माफी में रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट जो है हमारी ईगो को, हमारी मैं को मारता जाता है, खत्म करता जाता है। क्योंकि शैतान को एंट्री पॉइंट्स चाहिए, और जब जब हम अपनी पल्स को चेक करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किन एंट्री पॉइंट से शैतान जो है वो हमारे अंदर दाखिल हो जाता है। तो शैतान को दाखिल ना होने देने के लिए हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या खामियां, क्या फ्लॉज, क्या कमजोरियां हैं। जब उन कमजोरियों को हम पहचान जाते हैं तो वहां पे हमें गेट कीपर सेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो एंट्री, वहां पे गेट है जहां से एंट्री हो सकती है, गुस्सा एक गेट है जहां से शैतान अंदर आ जाता है, गिल्ट एक गेट है जहां से शैतान अंदर आ जाता है, हसद एक गेट है। तो ये तमाम चीजें हमारे अंदर जो जो भी बुराइयां हैं हमारे पास लिखी भी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी खामियां क्या है। झूठ बोलना, स्ट्रेस जब होता है तो कैसे हम रिएक्ट करते हैं, ये तमाम चीजें हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए
क्योंकि अगर हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे कंधे पे 2 फरिश्ते बैठे हैं जो हमेशा लिख रहे हैं क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो कोई भी चीज उनसे तो चूकने वाली नहीं है। तो कितना ही अच्छा हो कि हम भी खुद अपनी एक किताब रखें और लिखें, ताकि बार बार हम अपने आप को रिमाइंड करा सकें कि भाई मेरे अंदर क्या खामियां और क्या मैंने इन खामियों को दूर किया। तो एक चेक पॉइंट हमें मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये था कि जो मोमिन फरिश्ते के रास्ते पे चलता है, उसका पहला काम जो होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो जानवर बन जाता है, इंसान के दर्जे से उतर के जानवर पे चला जाता है। पहला उसको पता होना चाहिए। फिर उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब जब वो इन चीजों से निकल के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो कौन सी सिचुएशन या कौन सी बाजी शैतान की आती है और वो फिर नीचे चला जाता है। ये उस वक्त आदत आती है जब हम बार बार अपने आप को चेक करते हैं, पल्स चेक करना। जो मकसद है, कहा जाता है कि हमेशा आप यादगिरी में रहें, जिक्र में रहें। तो जो शुरू शुरू में क्या होता है, हमारी आदतें बुरी होती हैं, लोगों को जज करना या अलग फालतू बातें करना, फालतू चीजें सोचना। जिक्र करने से क्या होता है कि वो तमाम फालतू बातें हमारे दिमाग से खाली होती जाती हैं। शुरू का जिक्र जबान का जिक्र होता है, बहुत अच्छा। शुरू में जिक्र जबान का होता है, जबान ही से होना चाहिए, और कहाँ से जिक्र करेंगे भाई, पहले जबान ही से तो होगा ना। तो जबान से जिक्र करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। जब एक वक्त ऐसा आएगा दिल के अंदर ख्वाहिश कि भाई अब तो मैं जिक्र कर रही हूँ, अब मुझे और आगे बढ़ना, ये जिक्र जो मेरे अंदर कैसे जाए, तब इसका मतलब ये हुआ कि उस मोमिन के अंदर ये ख्वाहिश आई कि आगे बढ़ना है। मैं जिक्र तो कर रही हूँ, ऐसा लगता है 5 घंटे 6 घंटे बराबर जिक्र किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं महसूस हो रहा है। जब ये ख्याल आया, जब ये सवाल पैदा हुआ, तो आपने उठाई किताब और लिखा। What would you write in your notebook? When do I forget the zikr? You will identify कि क्या गेट्स हैं जिससे शैतान अंदर आ जाता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे शैतान को हमारे अंदर एंट्री मिलती है। आपने उसको लिख लिया। अब जो आपने एक हैबिट बनाई, अलार्म सेट करें, कोई भी चीज है दिमाग के अंदर, दोस्त जो है वो घर के अंदर ऐसे पॉइंट्स लगा देते हैं कि भाई जिक्र करें, कोई भी ऐसे चेक पॉइंट्स आप बना दें जिससे आपको बार बार ये याद आए कि आपको जिक्र करना है। जब जिक्र की आदत हो गई और जिक्र के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ तरक्की नहीं हो रही, तो चेक पॉइंट ये होगा, पल्स चेक करनी है। इस वक्त इस लम्हा जबान से तो जिक्र चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है। ये एक तरक्की की निशानी है, ये एक आगे बढ़ने की निशानी है कि अपने आप को पहचान के, समझ के कि कहाँ किधर गलती कर रहे हैं। ये वाला जो एक्शन है, ये एक मोमिन सालिक का एक्शन है। तो आप कहेंगे भाई मोमिन सालिक, अब हम जानते हैं मोमिन सालिक वो शख्स है जो सिरातुल मुस्तकीम पे खड़ा नहीं रहता है, चलता है। तो किसी ने हमें समझाया कि भाई जिक्र करना है, तो ठीक है हम 23 घंटे जिक्र कर रहे हैं, या अली 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 अली, लेकिन दिल के अंदर कुछ और चल रहा है। ये मोमिन सालिक नहीं है। ये ऐसा मोमिन है जिसने एक कदम उठाया, सीखा, जिक्र करना शुरू किया, फिर रुक गए, वहीं खड़े हैं, और दिल में क्या, ओ हम तो बहुत जिक्र कर रहे हैं, खुश हैं हम, बहुत आगे आ गए। गलत। मोमिन वो है जो हमेशा आगे आगे कदम बढ़ाता जाता है, एक जगह खड़ा तो नहीं रहता है। जहां हम खड़े रह गए वहीं मसला है। सबसे पहली बात हमें ये याद रखना होगा कि ये जो तरक्की है वो दर्जात में है, स्टेप बाय स्टेप है। जब हमारी जिक्र की आदत हो गई, जबान ही से जिक्र की आदत हो गई, आई वुड से मुबारकबाद, आप आगे बढ़े। अब दूसरा स्टेप ये है कि पल्स चेक करनी है कि कब कब जिक्र से ध्यान हट जाता है। कोई आके हमें बताएगा नहीं ना कि हमारे अंदर, खुद के अंदर क्या खामियां हैं। हमें खुद के अंदर खुद को देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ से एंट्री पॉइंट हो रही है। उसके लिए हमें किताब लेनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं उसके अब ब्लॉक क्या है। तो कोई कहेगा भाई कि गुस्से की बीमारी है, तो पिछले ही लेक्चर में ये कहा गया कि भाई अगर आपको गुस्सा आता है तो अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी का एक गिलास पी लें, लेकिन अपने आप को गुस्से से रोक लें।
अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, कामयाब, इसमें 3-4 स्टेप्स हैं। आप वो मोमिन है जिसकी जिक्र की आदत थी, आप वो मोमिन है जिसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि आगे बढ़ना है, आप वो मोमिन है इस ख्वाहिश के आगे बढ़ने के लिए आपने किताब उठाई, अपने आमाल को लिखा, पल्स को चेक किया, और इसके बाद आपने कामयाबी हासिल की उस रिएक्शन को रोकने के लिए, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो हसद है, चाहे वो गिबत करना है, कोई भी चीज है जो आपने आइडेंटिफाई की जो खामियां है, उससे अपने आप को करते हुए रोका। अगेन मुबारकबादी। ये हमें पता होना चाहिए, हमें कोई आके थोड़ी बताएगा कि भाई आप जो है ना वो अब अच्छे शख्स बन गए हैं। ठीक है, एक वक्त आएगा कि आपके अंदर जो नूर है वो दूसरों को नजर आएगा, एक वक्त आएगा, लेकिन शुरू में ऐसी बातें नहीं होती है। शुरू में कौन हमें समझाएगा कि हम अच्छे हो गए? कोई और तो आके हमें शाबाशी नहीं देगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा कि जो चीज हमने लिखी थी उसमें जो है हमारी बेहतरी हो गई। अब हमने आज जो हम 10 दफा दिन में गुस्सा करते थे, अब हमने 9 दफा किया, अपने आप को शाबाशी दी। इसी तरह से अपने आप को दर्जा बदर्जा अच्छा बनाना है। तो फरिश्ता जो होता है, मोमिन जो दुनिया के अंदर है, जो फरिश्ता बनना चाहता है, वो हमेशा अपने आप को चेक करते रहता है, अपनी फ्री विल। देखो फ्री विल से, क्यों फ्री विल की इंपॉर्टेंस है? फ्री विल से इंसान जो है वो जानवर बन सकता है, और फ्री विल से इंसान फरिश्ता बन सकता है। तो जो मोमिन सालिक है वो अपनी विल से, अपनी फ्री विल को इमाम को सबमिट करता है, सांस सांस सबमिट करता है, और वो अच्छा अपने आप को बनाता चला जाता है। इसी हवाले से एक और टर्म है जो हमने समझनी है, और वो है लश्कर। लश्कर जो टर्म है, इमाम बहुत ज्यादा बैतुल ख्याल में इस्तेमाल करते हैं। बैतुल ख्याल, ख्याल का घर। जो मोमिन सालिक है वो क्या करते हैं? अपने ख्याल के घर को बार बार सुधारना चाहते हैं, अपने ख्यालात को अच्छा करना चाहते हैं। ख्यालात को अच्छा करने के लिए ही तो जिक्र की आदत दी गई थी कि आपको जो है वो 23 घंटा जिक्र करना है। और फिर अगर आप बैतुल ख्याल के मेंबर हैं, जो कि माशाल्लाह आज के जमाने में बहुत ज्यादा जमात जो है वो बैतुल ख्याल में आ चुकी है, यानी कि अब जो है वो फ्री विल से, वॉलंटरली अपने आप का ये डिसीजन कि मुझे जो है इबादत करनी है। जैसे हमने इमाम से इसमें आजम को हासिल किया, हमने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम इमाम के स्पेशल लश्कर है, इमाम की आर्मी है। आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि कुरान में 2 आर्मी की बात की जाती है, शैतान की आर्मी और खुदा की आर्मी। तो अगर जब हम लश्कर की बात करते हैं तो हमारे ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि हम ये बात को समझें कि हम शैतान के लश्कर में हैं कि हम अपने इमाम के लश्कर में हैं। इमाम ने तो बहुत मोहब्बत से हमें ये कह दिया कि तुम जब बैतुल ख्याल में आए तो तुम सब हमारे लश्कर हो। लश्कर का काम क्या होता है? अगर हम दुनिया की मिसाल लेते हैं कि दुनिया में अगर हम मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है, दे ऑल आर आर्मी, काइंड ऑफ आर्मी, राइट? उनके अंदर क्या होता है? दे गो थ्रू वेरी डिफिकल्ट ट्रेनिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग। बहुत साल की वर्जिश और ट्रेनिंग के बाद जो है वो उनके अंदर ये आदत आ जाती है कि वो उसको, अपने आप को उस आर्मी में रखते हैं, अपने आप को उस फौज में मेंबर रखते हैं। लेकिन हमें ये जान के हैरत होगी कि आप किसी भी आर्मी से बात करें, दुनिया की आर्मी से, आपको पता चलेगा कि हर आर्मी को जो है वो कंटिन्यू एजुकेशन करनी पड़ती है। कंटिन्यू एजुकेशन क्यों? अपने आप को अच्छी आर्मी बनाने के लिए, अपने स्किल्स को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट कंटिन्यू एजुकेशन, कांस्टेंट लाइसेंसिंग एग्जाम्स देने पड़ते हैं टू प्रूव यू आर व्हाट यू आर सेइंग यू आर केपेबल ऑफ। तो सवाल ये होता है कि हम जब इमाम के लश्कर में हैं तो हम किस किस्म का अपने आप को कंटिन्यू एजुकेशन दे रहे हैं, किस किस्म की टेस्टिंग से गुजार रहे हैं टू से वी आर ट्रूली इमाम्स आर्मी, हम इमाम के लश्कर हैं।
कहाँ हमने वो टेस्ट दिया, किसने देखा, किसने उसको चेक किया? हाँ, हम जानते हैं पीर ने फरमाया कि मौला जाने चित की चोरी। मौला तो जानता है, हमारे फरिश्ते भी लिख रहे हैं, धड़ाधड़ लिख रहे हैं, लेकिन क्या हमने उस रिकॉर्ड कीपिंग बुक को खोला या हमने चेक किया कि हमने अपने आप को जो लश्कर में शामिल किया था, उस लश्कर की जो शरायत है, जो कंडीशंस मीट करने की है कंसिस्टेंटली, क्या हमने उसको मीट किया? तो चले हम डिस्कस करते हैं कि इमाम का लश्कर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली बात जो बैतुल ख्याल से पहले सीखने की है वो ये, इमाम फरमाते हैं कि तुम इंसान हो तो अपने इस रूप की अहमियत को समझो। इंसान स्वरूप में छो तेरे तमें समझो, उसकी अहमियत को समझो। यानी कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको समझना है कि फ्री विल से हम क्या 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 कर सकते हैं। हम जानवर भी बन सकते हैं, इंसान तो है हम फिजिकली, लेकिन इंसान बन के रह के हम फरिश्ते के रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं? एक मोमिन जो लश्कर में आता है उसकी प्री कंडीशन ये होती है कि वो फरिश्ता है। कोई कैसे इमाम के दरबार में जाके इमाम से ये मांगे कि मौला मेरी चाहत है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसमें आजम चाहिए, मुझे इबादत करनी है और आगे बढ़ना है, और हालत जो है वो खुद जानवर की हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई बात समझ की आ ही नहीं सकती है, कोई बात समझ बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि हमने इमाम के जो जनरल जमात के फरामीन है उसको नहीं माना, हम ना फरमान है, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो आगे बढ़ना है, हमको आप आगे की तालीम दे, हमको आप इसमें आज़म दे, हमको आगे बढ़ना है। तो आज जो हम पल्स चेक करने की बात कर रहे हैं, अपने आप के अंदर जो है गिरेबान में जाके अपने आप को टटोलना है कि जो जनरल जमात से जो शरायत है क्या मैंने उनको मुकम्मल किया है पहले, क्या मैंने उनको फुलफिल किया है? अगर उसी को फुलफिल नहीं किया है और फिर मैं ये कहूं कि भाई बैतुल ख्याल में बैठते तो हैं, ध्यान नहीं लगता है, इतने साल से इबादत कर रहे हैं, ध्यान नहीं लगता है, मुझे आप बताएं कैसे ध्यान लगेगा? कैसे ध्यान लगेगा? कैसे नींद को काबू करके हम एक चित होके बैठेंगे अगर सारा वक्त हमारा मिजाज जो है वो गुस्से में रहता है, सारा वक्त हमारे अंदर ये है कि हम बहुत अच्छे हैं, सारा वक्त ये है कि जिस सीट पे मैं बैठा हूं वो सीट ना छिन जाए, जो इल्म मेरे पास है, जो भी मेरे पास नॉलेज है उसको मैं शेयर ना करूं क्योंकि मेरी नॉलेज चली जाएगी, वो ज्यादा होशियार हो जाएगा। ये तमाम बातें जो है वो जानवर के लेवल की है। एक शख्स अगर हसद करता है तो वो जानवर की मिसाल पर है, कोई शख्स अगर गीबत करता है तो वो जानवर की मिसाल पर है। और ये तमाम शरायतें जो हैं, ये तमाम कंडीशंस जो हैं वो जनरल जमात को समझाई जाती हैं कि जमात के अंदर मोमिन की सिफात होनी चाहिए। मौला खुला फरमाते हैं कि दो किस्म के मोमिन हैं, एक जिस्म के मोमिन है जो इस दुनिया में ही राजी है, दुनिया में ही खुश है। वो किस किस्म के मोमिन है? मोमिन है क्योंकि जमात में है, मोमिन इज अ जेनेरिक टर्म, जमात में है, वो मोमिन जमात में है, लेकिन वो जिस्म के मोमिन है। दिखावे के लिए जमात खाने जाना, दिखावे के लिए इबादत करना, अपने नाम को बड़ा करना, ख्यालात जो है वो हसद के, बात जो है वो गीबत की, एक्शन जो है वो गुस्से का, ये जिस्म के मोमिन है जिनको आखिरत की कोई पड़ी नहीं है। उनको ये लगता है कि आज जो दुनिया में हम हैं वही हम सब कुछ है, कल मरना थोड़ी है। दूसरे जो किस्म के मोमिन है वो रूह के मोमिन है। रूह के जो मोमिन है उनको बहुत फिक्र होती है, बहुत फिक्र होती है, हर सांस सांस फिक्र होती है कि कहीं मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गुनाह का काम ना हो जाए। ऐसा मोमिन हमेशा अपने आप को आजिज़ी में, हमेशा माफी में रखता है, हमेशा बार बार वो ऐसी सेटिंग करता है अपनी लाइफ की कि बार बार वो चेक करता है कि अभी जो 5 मिनट पिछले गए या घंटा मेरा गया, मैंने
क्या किस तरह से वो घंटा गुजारा? जानवर की हालत में तो नहीं चले गए थे? क्या मैं इंसान तो रहा कम से कम? इंसान से अब चलो अब मुझे फरिश्ता बनना है, आगे बढ़ना है। तो ये चीजें जब हम करते हैं, समझते हैं, तब जाके हमारा दाखला जो है वो लश्कर में होना चाहिए। लश्कर में ऐसे थोड़ी दाखला हो जाता है। लश्कर क्यों बैतुल ख्याल को ये कहा गया कि भाई जब तक अडल्ट नहीं हो जाते हैं आप बैतुल ख्याल में नहीं जाते हैं। जमात में आमतौर पे ये होता है कि नहीं बच्चा सुबह उठता है 4 बजे उठता है, बराबर इबादत में बैठता है। क्या ये काफी क्राइटेरिया है कि 4 बजे उठते हैं? यानी कि नींद की कुर्बानी दी, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद। हमेशा जो भी चीज अच्छी करें उसमें अपने आप को शाबाश दें, लेकिन वहां रुक नहीं जाना है, वहां खड़ा नहीं हो जाना है, आगे देखना है। तो 4 बजे उठता है बच्चा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमल की, लश्कर की, फरमान बरदारी की समझ आ गई है? 18 इयर्स एज या 21 ईयर एज की जो बात की जाती है, इस उम्मीद से की जाती है कि इस शख्स ने, इस बच्चे ने, इस जवान ने दुनिया में जिंदगी गुजारी है, अच्छे स्कूल में गया, दुनियावी तालीम ली है, उसको ये समझ में आ गई है बात की कि एक अच्छा इंसान क्या होता है, एक इंसान के इखलाकियात क्या होते हैं। अगर वो इंसान ही नहीं रह सकता है और वो जानवर की तरह बिहेव करता है, वो इस काबिल तो नहीं है कि वो आगे बढ़े। आगे की तालीम कैसे हो सकती है जब जनरल जमात के जो फरामीन है उसकी फरमान बरदारी नहीं हो रही है? इस तरह से अपने आप को समझाना होगा, अपने घरों में ऐसी बातें करनी होगी कि हम समझे फरामीन को कि लश्कर का मतलब क्या है। अब जो लोग लश्कर में आ गए हैं, जिन्होंने इसमें आजम हासिल कर लिया है, जो आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि हमको ख्याल के घर के अंदर तरक्की करनी है। जब ख्याल के अंदर घर के तरक्की करनी है, ख्याल के घर में, तो हमारे ख्यालात दिन के वक्त कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है। एक आर्मी, कोई नेवी है या मिलिट्री है, जब वो ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेता है, इसके बाद उसे कंटिन्यू एजुकेशन करते रहना पड़ता है, ये प्रूव करते रहना पड़ता है कि भाई वो केपेबल है, कि अभी भी उसके पास आर्मी का टाइटल हो। तो सबसे बड़ी शर्त, पहली शर्त बिल्कुल यही है कि आप 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे नहीं, 4:45 बजे नहीं, कम से कम 4 बजे तो उठें। अच्छे मोमिन जो ज्यादा अच्छा चाहते हैं वो 3 बजे भी उठते हैं। 4 बजे उठें, 4 बजे उठ के इबादत में बैठे, नींद की कुर्बानी। लेकिन जब हम नींद की कुर्बानी देते हैं, इबादत में बैठते हैं, तो पता चलता है भाई ध्यान तो लग ही नहीं रहा है, कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा है। उठ तो रहे हैं, अच्छा फील भी होता है, जमात खाने गए अच्छा फील हुआ, जमात इबादत करी, लेकिन जो खुशी जो महसूस होनी चाहिए, जो तरक्की एहसास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई जमात खाना एक दिन नहीं गए तो उनको लगेगा कि भाई वो नीचे उतर गए। जमात खाना जो है, फिजिकल जमात खाना बहुत मैटर करता है, बहुत ही पाकीज़गी है, लेकिन उससे भी जो बरतर है वो हमारे दिल का जमात खाना है। अगर कोई जमात खाने फिजिकली पहुंच भी जाता है और उसके दिमाग के अंदर दुनिया 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 ही भरी हुई है, उसका जमात खाने जाना या ना जाना बराबर है। इनफैक्ट इमाम का जो फरमान है कि 3 किस्म के लोग जमात खाने आते हैं, कि एक जो आते हैं जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, ना कुछ कमाया ना कुछ खोया, ऐसे ही चले जाते हैं। दूसरे जो लोग आते हैं वो जमात खाने आके और नुकसान करके जाते हैं। जमात खाना जो इमाम का घर, जो पाकिज़गी का घर है, कोई कैसे नुकसान करके जाए? इमाम का फरमान है कि जमात खाने में आकर भी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान करके लेके जाते हैं अपने साथ। फिर एक कैटेगरी होती है जो मोमिनों की, वो आते हैं और वो कमाई करके जाते हैं। अब ये बात हमें कौन बताएगा? ईमान तो जाने चित की चोरी, हमारे फरिश्ते तो लिख रहे हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर हमारे ख्याल कैसे हैं, ये खुद को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कुर्बानी हुई लश्कर के लिए, वो जागने की कुर्बानी, जमात खाने जाने की कुर्बानी, बराबर 1 घंटा बैठने की कुर्बानी। लेकिन ये काफी नहीं है, अंदर क्या चल रहा है वो भी मैटर करता है। तो जब अंदर की तपास करते हैं, मुआयना करते हैं, तो पता चलता है कि जो जो काम 23 घंटे में हमने किए थे, वो 23 घंटे के जो अहवाल थे, जो एक्शंस थे, जो ख्यालात थे, वो ही जो है इबादत के वक्त आ रहे हैं।
तो लश्कर की कंडीशंस क्या है? जो मोमिन लश्कर में अपने आप को रखना चाहता है, तो उसको जो है 23 घंटे का अपने आप को मुआयना करना पड़ेगा, हिसाब किताब करना पड़ेगा। कितना जिक्र किया, कैसे जिक्र किया, कितना अपने अमाल की अपने आप को पाकिज़गी में रखा, कितनी दफा शैतान को अंदर आने की एंट्री दी, कितनी दफा माफी मांगी, कितनी दफा शुक्र किया, कितनी दफा सब्र किया। क्या जब हम रात को अपनी पल्स चेक करें तो ये तमाम चीजें हम अपने लिए लिख पाते हैं, बता पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो मुबारकबाद। फिर आगे का दर्जा आता है। इस तरह से जब दर्जात में हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तभी हमें बेहतरी और फायदा नजर आएगा जब हम बैतुल ख्याल में बैठेंगे। जब तक 23 घंटे हमारे पाक नहीं होंगे, 24वें घंटे में जो तरक्की चाहिए वो मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। इमाम ने फरमाया कि जो हकीकी सुख की जो चाबी है, जो कुंजी है, वो इबादत है। लेकिन हमने इबादत के लफ्ज को बहुत लिमिट करके 1 घंटा कर दिया है, जबकि ऐसा दुरुस्त नहीं है। इबादत जो है वो अब्द से निकला है, और अब्द के जो मानी है वो गुलामी के हैं, सबमिशन के हैं। सबमिट करने वाला मोमिन आजिज होता है, अपने गुनाहों पे नजर रखता है, अपने हमेशा कोई दिल भी दुखाता है तो उसको माफ कर देता है, दिल को साफ कर देता है। जब माफी की आदत होती है, दिल की सफाई की आदत होती है, तभी उस मोमिन के अंदर जब वो जिक्र क्वांटिटी में करता है, जबान से करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जिक्र खुद ब खुद चलने लगता है। शुरू का जिक्र जबान से किया जाता है और जोर से किया जाता है ताकि कान को सुनाई दे, क्योंकि हमारे जितने सेंसेस, जो इंद्रियां हैं, उन तमाम को इस्तेमाल करना है। आंख से पढ़ना है, कान से सुनना है, जबान से बोलना है। ये तमाम चीजों को हम जितना ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इतना वो पाकीज़ा रूहें हमारे अंदर दाखिल होती जाती है, शैतान को एंट्री नहीं मिलती है। और शैतान एंट्री मार भी देता है तो हम जब किताब लेके बैठते हैं तो लिखते हैं कि देखो शैतान ने यहाँ एंट्री मारी। ये किताब हमारे अपने लिए, किसी के लिए नहीं है। जब हमने देख लिया कि शैतान ने इस तरह से एंट्री मारी, तो कल जो है हम और सुजाग रहेंगे, और चौकस रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे कि भाई शैतान को जो है वो एंट्री पॉइंट नहीं देना है, और बहुत ही होशियारी से अपने दिन को बसर करना है। लश्कर के जो बहुत इंपॉर्टेंट माना है वो है कंटिन्यू एजुकेशन, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग द जॉब, कंसिस्टेंटली प्रूविंग कि हम लश्कर हैं। अगर कोई प्रोफेशनल है यहाँ पर, या कोई भी जॉब पर है जहाँ एजुकेशन है, या जो भी है, बिजनेस भी है, इवन बिजनेस में भी हमें ये देखना पड़ता है कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी जो है आज के जमाने से, आज के वक्त में कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें कि हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आए, यानी कि मेंटेन रखें उस चीज को, हमारी जो इनकम है, हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो फायदा है, उसको मेंटेन रखें। तो ये एग्जांपल हर एक पे लागू होती है कि दुनिया में जो भी हमारा जॉब है, बिजनेस है, हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऑन टॉप ऑफ द गेम रखना पड़ता है टू बी एबल टू गेन व्हाट वी आर इंटेंडिंग टू गेन, हमारी इनकम हो। घर में अगर हाउस वाइफ भी है, एवरी डे कुछ अच्छा खाना, डिफरेंट खाना पकाना है, बड़ा दिन है तो डिफरेंट खाना पकाना है। हर वक्त हमें अपने आप को उस रोल में फिट करने के लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाना पड़ता है। कोई भी चीज हम लेके फॉर ग्रांटेड लेके अगर बैठ जाए, उस प्रोफेशन में, उस बिजनेस में, उस इल्म में, उस रिलेशन में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कोई भी अमल जो हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। किसी भी मिसाल है, लिटरली आप किसी भी मिसाल को लें, अपने आप को सुधारना पड़ता है, बेहतर बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब दुनिया के अंदर, दुनिया के रिलेशंस में, दुनिया के जॉब्स में ये करना पड़ता है, तो क्यों ये उसूल हम अपने मजहब पे, अपनी रूह पे लागू नहीं करते हैं? इमाम का तो फरमान है कि आप मेरे लश्कर हैं। लश्कर की जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि भाई फॉर ग्रांटेड ये हमको नहीं मिल गया है। लश्कर में आने वाला, बैतुल ख्याल में आने वाला, इसमें आजम को पाने वाला शख्स भी जानवर की मिसाल हो सकता है। तो इमाम क्या फरमाते हैं कि हमने तुम्हें जो है, जिसने, क्या फरमाते हैं मौला, कि जिसने आम को चखा नहीं है वो प्याज ही की तारीफ करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है आम क्या है। तो कितनी
आसान मिसाल में इमाम ने हमें समझाया कि जिसने ऐसे आला दर्जों को पाया नहीं है, तरक्की नहीं की है, उसको क्या समझ कि उसमें क्या मजा है, कैसी शांति है। जब इमाम फरमाते हैं कि मोमिन है ना, वो हमेशा रूहानी मस्ती में रहता है, हमेशा रूहानी मस्ती। वो मस्ती क्या है, वो इश्क क्या है, जब तक पता ही नहीं है तो क्या हम उसको क्या करेंगे, हम समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर दिल के अंदर ये भावना आती है, ये ख्वाहिश आती है कि मुझे जानना है कि वो मस्ती क्या है, वो इश्क क्या है, तो हमें अपने आप को फरमान बरदारी में रखना होगा। लश्कर की डेफिनेशन को समझ के अपने आप को कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट में लाना होगा, पल्स चेक करनी होगी, अपने लिए क्राइटेरियाज बनाने होंगे कि क्या क्या मेरे अंदर खामियां हैं, उसको मुझे सुधारना है इमाम के फरामीन की रोशनी में। इल्म जो ना, वो 1 घंटा हमने सुना, उसका जो होमवर्क होता है ना, बहुत सारे घंटे देने पड़ते हैं, और उन घंटों का नंबर जो वो हम ही डिसाइड कर सकते हैं। कोई बहुत मुझ जैसा गरीब होगा तो शायद 6-7 घंटे लगे, अच्छे लोग होंगे शायद 3 घंटे लगे, लेकिन लगेंगे। और एक जो हमने घंटा इल्म का लिया, जो अब हमें अपनी पल्स को चेक करना है, अपने नफ्स को जो टटोलना है, वो तो एवरीडे की कहानी हो गई भाई। इमाम ने फरमाया कि हर रात को करो, लेकिन मुझ जैसा गरीब जो गुनहगार है, उसको तो शायद हर घंटे में चेक करना पड़ेगा कि भाई कहीं गुनाह तो नहीं हो गया मुझसे, कोई गलत काम तो नहीं हो गया, माफी तो मांग ली, अपनी नीयत को तो साफ रखा। तो ये तमाम चीजें जो है वो समझने की है और अमल करने की है। सुनते जाएंगे अच्छी बात है, आगे बढ़ना है तो अमल करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने आप को चेक करना है कि मैंने अपने घंटे कैसे गुजारे, उस घंटों से मैंने क्या हासिल किया। इल्म सुना, बहुत मजा आया, दिल को बहुत आनंद आया, शुक्र मौला। आगे क्या? मोमिन की जो आदत है वो आगे बढ़ने की है। आगे बढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। इसी तरह से इमाम जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मेहनत के, हिम्मत के, ईमान के। इन तमाम लफ्जों को बहुत ही डिटेल में जाके समझना चाहिए और अपने आप पे लागू करना चाहिए। समझना एक चीज है, लागू करना बिल्कुल दूसरी चीज है। लागू करने वाले कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं करते हैं, कौन अभी किताबें उठाए, इतनी उम्र हो गई है, या अभी टाइम ही नहीं मिलता है, जॉब इतना बिजी है, काम में इतना बिजी, इतने घंटे थकी, नींद भी पूरी नहीं होती है। ये तमाम जो है वो एक्सक्यूजेस हैं। एक्सक्यूज को छोड़ के अमल में लाने के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि क्यों हमें फायदा नहीं हो रहा है। अगर हम इल्म गिनान में हैं, जिक्र और इबादत में हैं, तो फायदा दिखना चाहिए ना। 2 + 2 4 होना ही चाहिए, कैसे ना हो। इमाम फरमाते हैं कि जिस तरह से तुम घर के अंदर लाइट बल्ब को देखते हो, अगर तुम हाथ उठा के स्विच को ऑन करोगे तो लाइट देखोगे। हाथ उठा के स्विच को ऑन करना, अपनी फ्री विल से अपने आप के ऊपर इन फरमान की फरमान बरदारी में डालना, लाइट डेफिनेटली नजर आएगी। तो यहाँ पे हम रोकते हैं। अगर किसी दोस्त के पास कोई सवाल हो तो जरूर आगे आए। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। Appa, I think we have one question. Somebody sent it to me in private chat, so I'm going to share with the group. Ji, Appa. So the friend is asking, if a moment did everything to receive Imam's knowledge in this physical world, but somehow that moment was not able to complete his bandagi, how is this ilmi intellect that moment gathered in this world going to help him in the spiritual world after he dies? So this question actually is answered already. किस तरह से? Friend says, if a moment did everything, if that moment has done everything, Imam knows it. There is no question or no worry about it. The moment has done everything. कोई excuse नहीं किया, कोई सुस्ती नहीं की है, हमेशा अपने आप को अमल पे रखा है। खत्म बात, उसको फिक्र ही नहीं करनी है। Imam will take care of him because he did everything.
امام is just, امام جو ہے وہ رحمان بھی ہے, عادل بھی ہے. If that moment has done everything, he or she does not need to worry about anything. Remember, when we talk about this concept of pulse check, when you are checking your pulse and you do not find any flaws, you think that you've done everything possible, whatever there is to be done, you have nothing to worry about. Subhanallah. یا علی مدد سم ٹائم ہم کو یاد رہتا ہے پورا دن کہ ہم کو ذکر کرنا ہے, ہم کو یہ کرنا ہے, لیکن I'm just sharing or unintentionally that's also a خیال کی چوری by شیطان کہ we just think کہ we have to do zikr, we have to do zikr, we remember but we don't actually not doing zikr. جی You getting it? جی Yeah. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ہم یادگیری میں تو رکھتے ہیں کہ ہمیں ذکر کرنا ہے, ذکر کرنا ہے. I got to do this, I got to do this, but you don't do it. That's what you are saying. Yes. جی تو ہم نے بات کی بہت ڈیٹیل میں کہ عمل کرنا ضروری ہے. جب تک عمل میں نہیں لاتے ہیں, کرنا تو سب کو سب کچھ ہے, کون کر رہا ہے وہ سوال ہے. یہاں پہ مجھے ایک اور بات, یہ کامنٹ ہے اے کا, بہت اچھا لگا. یہ دوست کہتے ہیں کہ علی مدد this session was on how to apply these things which we have been listening to. At times we get influenced by our families and social pressure to be fitting in. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ to be fitting in. مومن جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے. مومن کے اوپر یہ امتحان ہے کہ مومن جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے. وہ خوش قسمت ہے کہ اس کی فیملی بھی اگر وہ مومنی کے راستے پہ ہے تو وہ اکیلے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کلام مولا کو پڑھتے ہیں, کلام مولا میں امام نے صحبت کے بارے میں بہت پیارا ایک پورا چیپٹر ہے صحبت کے بارے میں کہ you got to be in the company of those friends who want the same thing, like-minded people. Surely these people who want to be Mormons, they will not fit in with the worldly people. There is no way, you cannot fit in. Imagine, کون صبح ویکینڈ کے اندر 7 بجے اٹھ کے علم گنان کی باتیں کرے, اپنے نفس کو ٹٹولنے کو سوچے. کیونکہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے دل کے اندر جان بھی رہا ہے نا. مومن ہوگا نا, وہ رات کو ٹائم پہ سوئے گا تاکہ صبح اٹھے, عبادت بھی کرے, علم کلاسز بھی اٹینڈ کرے. دنیا دار کیا کریں گے؟ پارٹی کریں گے, فنکشن کریں گے, کچھ چیز اٹینڈ کریں گے. تو وہ کیا ہوگا؟ شیورلی جو لوگ مومنین ہیں وہ اپنی فیملی سے بھی کٹ جاتے ہیں, اپنے دوستوں سے بھی کٹ جاتے ہیں. اینڈ آئی وڈ سے دیٹ از اوکے. فائنڈ پیپل ہو آر لائک مائنڈیڈ, جو چاہتے ہیں کہ ذکر و عبادت میں رہیں, اچھے اعمال میں رہیں, ایسے گروپ میں جوائن کریں, ایڈوانس نالج کو حاصل کریں, تاکہ کیا ہو کہ آپ کے اندر یہ ایک خلا جو پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی nobody likes me in my family. Then you tell yourself, you know what I like, they don't like it. But what I like, my Maula likes it. Because I'm trying, I'm working hard to follow the Faramin of Imam. That should make us feel good. شکر گزاری کے ساتھ, غرور کے ساتھ نہیں, شکر گزاری کے ساتھ کہ یا مولا please do not put me in test, do not put me into the situation where I have to be fitting in the family. I don't want to fit in. It's okay if I don't fit in. I like my like-minded friends. I would like to do my zikr ibadat with them, learn and grow with them. So yes, this is very important کہ ہم پریکٹیکل باتیں کریں, عمل کرنے کی چیزیں کریں, تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس راستے پہ آگے سے آگے بڑھائیں. Jiap, I think we have one more question somebody shared in the private chat. I heard from previous lectures that we will get ilmi lectures in the spiritual world also. Who is going to provide this knowledge to our souls? So those who will learn in this world, those who will continue to improve and become angels, those who have more knowledge than us, those souls will be giving us the knowledge. Because if we don't know as much they know, they will be giving us the knowledge, just like in this world. علم گنان کا جو کام ہے وہ ختم نہیں ہونے والا اس دنیا میں, اس دنیا میں بھی چلتے رہنا ہے. لیکن جتنا جو آگے ہوگا اتنا وہ امام سے قریب ہوگا.
जितना जो ज्यादा दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है, राइट? दुनिया में जो हम कमा के लेके जाएंगे वहां हमें वो बहुत काम आने वाला है। हमारे अमाल की, हमारे इल्म की जो दौलत है वहां पे वो करेंसी है। जिसके पास ज्यादा होगा उसको ज्यादा से ज्यादा करीब इमाम के घर मिलेगा, इमाम के करीब जो है वो रॉयल बैंगलो मिलेगा। दैट्स हाउ आई लाइक टू से इट एक्चुअली। आखिरत में जाने के लिए जो हमारे पास आमाल की कमाई है, इल्म की कमाई है, वो हमारे साथ आएगी। और जितना हमारा दर्जा होगा, अगर इस जिंदगी में हमने इल्म जो है वो 5th क्लास तक हासिल किया, रूहानी इल्म की बात हो रही है, लेट्स से जस्ट एग्जांपल कि 5th क्लास तक हमने इल्म हासिल किया, तो वहां पे जो हमारा घर होगा वहां पे ऐसा होगा टीचर जो 6th ग्रेड का होगा जो हमें पढ़ाता होगा। सो दोज हु लर्न नॉलेज, spiritual knowledge, true knowledge in this world, they will be our teachers there. Simple as that. Yeah, but I don't see any questions in the chat anymore. Yeah, it's okay. अच्छी बात है कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। तो आपसे इजाजत लें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस सैटरडे मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रानिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये आशिकों की महफिल है कि सुबह सुबह उठ के इल्म गिनान के लिए जमा हो जाते हैं। शुक्रानिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रानिल्लाह। Alhamdulillah. Yali Madad, thank you very much. Yeah, Thank you. Alhamdulillah. Thank you, Yali Thank you Mother. so much. I was just wondering, would we be able to get the recording? Because I would love my sisters to be able to hear all what you said today. Shukran Wallah, Shukran Wallah. I will surely, we will share it. Kamara Sahib will share the recordings. Okay, thank you so much. And thank you so much for this beautiful, beautiful lecture. Ameen. All due to your Thank prayer. you, Thank you and so Yali much. Madad. Yali Mother, Dr. Sahib, Yali Mother. Mola bless you. Mola bless you always. Ameen. Thank you, Yali Mother.